Good morning, students. Today I am going to teach you a poem that is called The Wild. This poem has been written by Subramania Bharati, and actually, this poem was written in Tamil by A.K. Ramanujan, and it has been translated by Subramania Bharati. So, in this poem, we will read about the wind when it blows strongly, how it causes a lot of destruction. But it can also make friendship with us. We will read in detail how the wind becomes the bitter enemy of the weak and a true friend of the strong. If you are strong, the wind itself will make friendship with you. If you are weak, then the wind will destroy you. So, you know that the wind is a natural phenomena. So, how we should react? How we make ourselves strong so that the wind will make friendship with us. Okay? So, we will start now. Wind, come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. In the first stanza, the poet addresses the wind as a destructive thing. The poet requests the wind not to be destructive, not to destroy anything belonging to the poet. So, what he says, what he pleads, he says, "O wind," he addresses the wind. He addresses the wind and requests to come softly. It means to blow gently. Everybody likes the gentle wind because it blows slowly, it blows gently. It is not harmful, it is not destructive, it does not destroy, it gives pleasure to us. जब धीमा हवा चलती है वो हानिकारक नहीं होता है, हम सब उसको पसंद करते हैं. When the gentle wind blows, जब धीमी हवा चलता है. So in the first stanza, the poet requests the wind to come softly, means to blow gently. Don't break the shutters. It means sometimes it creates havoc. Sometimes it destroys. Sometimes it breaks the shutter of the room. So the poet requests the wind not to break the shutters of the windows. O wind, don't break the shutter of the windows, and you are humbly requested to blow gently, to come softly. And next, the poet also requests the wind, don't scatter the paper. When the wind blows hard, it scatters the paper all around. अगर आपके टेबल पर कुछ पेपर्स
रखा गया हो, अगर जोरों की हवा चलता है, जोर से हवा चलता है, तो सारे पेपर को बिखरा देते हैं। So the poet requests the wind not to scatter the papers, and don't throw down the books on the shelf. Generally, we keep our books on our shelf, but when the wind blows hard, it throws all the books down from the shelf. तो कभी रिक्वेस्ट करते हैं वाइंड से, ओ वाइंड आप धीरे से आओ, धीरे से बहो, मेरे विंडो के शटर को मत तोड़ो, मेरे पेपर को मत बिखराओ, और मेरे जो सेल्फ में रखा हुआ है किताबें उसको मत गिराओ नीचे। इट मीन्स द वाइंड डज ऑल दिस activities. The wind is in the habit of doing all these things when it blows hard, when it takes its violent form. जब वो अपना विनाशकारी रूप को धारण करता है, तब वो क्या करता है ना, चारों तरफ डिस्ट्रॉय कर देता है, विनाश कर देता है। चारों तरफ विनाश ही विनाश नजर आता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कवि, दे आर, देखो देखो, लुक व्हाट यू डिड, आपने क्या किया वहां पर, यू थ्रू देम ऑल डाउन। इट मीन्स द वाइंड डिड नॉट ओबे टू द वर्ड्स ऑफ द पोएट। वाइंड ने कवि का कहना नहीं माना, उनके रिक्वेस्ट के बावजूद भी वाइंड ने उनके जो बुक सेल्फ में बुक रखा हुआ था सबको नीचे गिरा दिया। तो इसीलिए कभी कह रहे हैं कि लोग, यू थ्रू देम ऑल डाउन, आपने सबको गिरा दिया भाई। आपको मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये मत करो, ये मत गिराओ, फिर भी आपने नहीं माना, मेरे सारे किताब को नीचे गिरा दिया। You tore the pages of the books. You tore the pages of the book. The books were kept in the shelf, and when the books fell down by the strong wind also tore the pages of the books. किताबें के पन्ने को भी फाड़ दिया। तो कभी कह रहे हैं कि ओ वाइंड, तुमने क्या किया, मेरे किताब के सारा पन्ने को फाड़ दिया। यू ब्रट रेन अगेन, फिर अपने रेन को ला दिया। इट मीन्स इट हैड ऑलरेडी ब्रट द रेनफॉल, ये पहले ही बारिश को ला चुका था। तो कभी अब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब बारिश ना हो। There was no need of rainfall. It was excess. It was enough earlier. But once again, without obeying, without accepting the request words of the poet, the wind brought the rain. फिर बारिश को ला दिया। You are very clever at poking fun at weaklings. आप क्या करते हो ना, जो वीक होते हैं, जो वीकलिंग्स होते हैं, जो कमजोर होते हैं, आप उसको डिस्टर्ब करते हो, परेशान करते हो। यू ऑलवेज डिस्टर्ब द वीक, बट यू कांट डिस्टर्ब द स्ट्रॉन्ग। यू आर इन द हैबिट ऑफ डिस्टर्बिंग द वीकलिंग। आप कमजोर को हमेशा परेशान करते हो, और फिर शुरू कर दिया, जो किताबें सेल्फ में रखा गया था उसको गिरा दिए, जो पेपर टेबल पर रखा हुआ था उसको बिखरा दिए, आप शटर, जो विंडो के शटर को तोड़ दिया, अपने फिर बारिश को ला दिया। इट मीन्स यू डैमेज्ड मोस्टली थिंग्स।
फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जितनी सारी फ्रेल हाउसेस थे, फ्रेल मीन्स वीक, नॉट स्ट्रंग, जो कमजोर घर थे, कमजोर मकान थे, आपने उसको क्या कर दिया? क्रम्बलिंग कर दिया। क्रम्बलिंग मतलब फैलिंग इनटू पीसेस, आपने टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसको कोलैप्स कर दिया, उसको धराशायी कर दिया, डैमेज कर दिया। यू डैमेज्ड द फ्रेल हाउसेस, जो कमजोर घर था आपने उसको गिरा दिया, कोलैप्स कर दिया। क्रम्बलिंग डोर्स, जो फ्रेल डोर्स थे उसको भी तोड़ दिया। क्रम्बलिंग रैप्टर्स, रैप्टर्स किसे कहते हैं? स्लोपिंग बीम्स दैट सपोर्ट ए रूफ, जो छत को सहारा देता है, बीम्स है, वो अगर कमजोर रहता है तो उसको भी आपने तोड़ दिया, गिरा दिया। क्रम्बलिंग वुड, जो कमजोर लकड़ी थे उसको भी तोड़ दिया। क्रम्बलिंग बॉडीज, इवन जो कमजोर व्यक्ति था उसको आपने डैमेज किया। अनक्रम्बलिंग लीव्स, जो बहुत फ्रेल लीव्स थे, नाजुक जिंदगी थे, आपने नाजुक जिंदगी को बहुत नुकसान पहुंचाया। यू डैमेज्ड ए लॉट टू द फ्रेल लीव्स, यू हर्ट ए लॉट टू द फ्रेल ह्यूमन बींग्स, to the frail bodies. You damaged a lot to the frail buildings, frail shutters, and whatever it was frail. जो नाजुक था, जो कमजोर था, आपने उसको सताया। You oppressed, you hurt, you damaged, you pained, आपने उसको दुख दिया, दर्द दिया। यानी despite heartily request of the poet to the wind didn't accept the requesting words of the poet. It did what it wanted to do. It did as usual, as it was the habit of the wind to damage the weaklings. जैसे कि वाइंड का आदत था और आदत भी है हमेशा वो कमजोर को सताना, कमजोर को तोड़ देना, तो उसी प्रकार का उन्होंने किया। आप भी जानते हो जब साइक्लोन आता है, वाइंड स्टॉर्म आता है, तो जितने सारे वीक ट्रीज भी होते हैं, वीक बिल्डिंग्स भी होते हैं, उनको क्या करते हैं ना, कोलैप्स कर देता है, धराशायी कर देता है। यानी इट ओनली डैमेज द वीकलिंग्स। तो नेक्स्ट व्हाट द पोएट सेज, इट आल्सो क्रम्बलिंग हार्ट्स, जो नाजुक दिल वाले होते हैं, जो कमजोर दिल वाले होते हैं, उनको भी आप डैमेज पहुंचाते हो। द वाइंड गॉड विनोज, द वाइंड गॉड, यहां पर वायुदेव, हवा को पवन देव जिसको कहते हैं, वाइंड को गढ़ के तहत तुलना किया गया है। द पोएट एड्रेसेस, ओ वाइंड गॉड यू विनोज, जनरली आफ्टर थ्रैशिंग we winnow and crushes them all. When we winnow, what it happens? The grains fall down and the chaffs move away, blow away. अनाज नीचे गिर जाता है क्योंकि वो भारी होता है, वो स्ट्रांग होता है, और जो भूसा होता है वो कमजोर के कारण उसको हवा ने क्या करता है, उड़ा करके ले जाता है। So the poet says that the wind god winnows and crushes them all. तो कमजोर को कुचल देता है, क्रश कर देता है। He won't do what you tell him. आप जो बोलोगे वो नहीं करेगा। It means the wind god will not accept the words of anybody. वो किसके बात को सुनने वाले नहीं हैं। आपके रिक्वेस्ट को वो नक डाउन कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे।
He will reject your plea. Plea means request. The wind god will reject your plea. He will not accept your request. He won't do what you tell him. तो इसीलिए हमको क्या करना होगा? जो करने वाले हैं हम लोग करेंगे, वाइंड गॉड नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी के बस में नहीं है, वो मानने वाले नहीं है, वो आपके बात को सुनने वाले नहीं हैं। इसीलिए हमें क्या करना होगा? सो कम, आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स। चलो हम लोग अपने होम को स्ट्रांग बनाते हैं। क्यों? अर्लियर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द वाइंड ओनली डैमेजेस द वीकलिंग्स। हमेशा वो कमजोर को सताते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए चलो हम अपने मकान को स्ट्रांग बनाएं। वी विल मेक आवर बिल्डिंग स्ट्रांग। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली। हम लोग अपने डोर को, दरवाजा को जो कसेंगे, फर्मली, दृढ़ता से कस दिया जाए ताकि उस पर कोई बैड इफेक्ट ना पड़ सके। The wind can't have any bad effect on it. The wind can't damage to it. तो इसीलिए चलो हम लोग अपने बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाए, अपने हाउस को स्ट्रांग बनाए, और अपने जो दरवाजा लगाते हैं उसको फर्मली उसको सेट कर दें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। और अपने बॉडी को भी आदत डालो स्ट्रांग बनाने के लिए। प्रैक्टिस, cultivate the habit to make your body bold and strength. अपने बॉडी को बोल्ड और स्ट्रेंथ बनाने के लिए आदत डाल दो। मेक द हार्ट, और अपने दिल को क्या करो? स्टेडफास्ट मीन्स फर्म, अड़ीग, दृढ़। अपने हार्ट को भी अड़ीग और दृढ़ बना दो। डू दिस, ऐसा करो। अगर आप ऐसा करते हो, इट इज श्योर द वाइंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। अगर हम लोग अपने को स्ट्रांग बना लेते हैं, अपने घर को, अपने दरवाजा को, अपने शरीर को और अपने दिल को अगर हम स्टेडफास्ट और स्ट्रांग कर लेते हैं, द वाइंड विल मेक फ्रेंडशिप विथ अस। The wind will make friendship with us. तो हवा ने क्या करेगा? हमारे साथ दोस्ती बना देगा। क्यों? It is the proof. The wind blows out weak fires. जो कमजोर आग होता है उसको हवा बुझा देता है। He makes strong fire roar and flourish. और जो स्ट्रांग फायर होता है उसको और वो क्या करता है? फ्लोरिश करता है, प्रोग्रेस करता है। सो वीक फायर, डोंट बी द वीक फायर, बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ द वाइंड टू डैमेज द वीकलिंग, टू हर्ट द वीकलिंग। सो बी स्ट्रांग, मेक योर सेल्फ स्ट्रांग, एंड इफ यू मेक योर सेल्फ स्ट्रांग, डेफिनेटली, sure and certain, the wind will make friendship with you. If you are weak, the wind will damage you, the wind will hurt you. But if you are strong, then the wind will support you. The wind will make you flourish. The wind will make you develop, because it will try to make friendship with you, and his friendship is good. His friendship is good. You will get in his friendship. You will not lose anything in his friendship. So why we will not make friendship with the wind? And if you want to make friendship with the wind, then make yourself strong. Make yourself firm. Make yourself steadfast. And we praise him every day. So, it is a message of the poet to the readers.
Oh readers, never make yourself weak. Never be weak, always be strong. And once you are strong, even who are stronger than you, who are the strongest, they will also want to make friendship with you. So it is the message, it is a great lesson for the readers. So students, it is all about the poem Wine. So thank you. In my next video, I will teach you the next topic. Thank you.